Hello students, most welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and you are watching an important series of 15 lectures containing 150 important questions of the topic trigonometric ratios and identities for JEE Math. So students, all these 150 MCQs are selected from your favorite books Cengage Mathematics and Objective Mathematics by R.D. Sharma. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज फॉर JEE Main. So this is the question number 11 of this lecture number 2. 11 to 20 ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हियर आई हैव गिवन दिस वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो मैं इसे लिख लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज x? x क्या दिया है मुझे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा. व्हाट इज x? x इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा. एंड व्हाट इज y? y इज गिवन एज cosec theta plus cot theta. If x is sec theta minus tan theta and y is cosec theta plus cot theta, then which relation between x and y is correct? Option A, B, 1, 2, 3 जो तीनों ऑप्शंस में एक्स वाई प्लस 1 की टर्म मुझे दिखाई दे रही है तीनों ऑप्शंस में. तो एक्स वाई प्लस 1 को मैं सॉल्व करूँगा. आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व एक्स वाई प्लस 1. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? sec theta minus tan theta is x into this y. तो y क्या है? cosec theta plus cot theta. ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे एक्स वाई प्लस 1 को. वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो sec theta इज 1 बाय cos theta. इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. sec इंटू cosec करेंगे 1 बाय cos इंटू 1 बाय sin. सो इट इज श्योरली 1 बाय cos theta इंटू sin theta. Plus into plus plus, sec is 1 by cos, this is cos by sin, 1 by cos, cos by sin, cos cos cancel, ये बनेगा 1 by sin theta minus into plus minus sin by cos into 1 by sin. cosec cosec 1 by sin है, ये sin by cos है तो sin sin cancel होगा. 1 by cos theta minus into plus minus tan theta into cot theta is 1. So this is the value of x into y. प्लस 1 भी करने का है. सो दिस लास्ट इज प्लस 1. तो ये माइनस 1 प्लस 1 विल गेट कैंसल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज ओनली 3 टर्म्स, लेकिन मुझे x भी एडजस्ट करने का है. राइट हैंड साइड देखिए ऑप्शंस में x प्लस वाई, y माइनस एक्स है, x माइनस वाई. तो मुझे टर्म्स कितने हैं? 4 टर्म्स. तो उसे 4 टर्म्स में मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो दिस विल बी कन्वर्टेड लाइक दिस. I will use identity for this one, and our first identity of trigonometry is sin square theta plus cos square theta. 1 को मैंने लिखा है sin square theta plus cos square theta upon this cos theta into sin theta plus 1 upon sin theta minus 1 by cos theta. ओके, अब इसे सेपरेट कर देते हैं. sin square upon sin into cos, एक sin sin कैंसिल होगा. sin by cos ये बनेगा tan theta प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर अपॉन cos इंटू साइन, cos cos कैंसिल होगा. 1 cos बाय साइन होगा. cos बाय साइन क्या होगा? cot थीटा. cos बाय साइन विल बी इक्वल टू cot थीटा प्लस दिस इज अगेन मैं इसे लिख लेता हूँ cosec थीटा और इसे लिख लेता हूँ sec थीटा. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, इसे मुझे x और y एडजस्ट करने का है. तो कोसेक प्लस कॉट की टर्म मुझे दिखाई दे रही है. कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. दिस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? y, और यहाँ पे x भी एडजस्ट होगा. सो दिस इज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है. तो श्योरली यहाँ से माइनस कॉमन लेके मुझे x मिल सकता है. सो टेकिंग माइनस कॉमन, this is sec theta minus tan theta. So cosec theta plus cot theta is what? Y minus sec theta minus tan theta is what? X.
So here xy plus 1 is equal to y minus 6. So here important step is to write the one as sin square theta plus cos square theta इसे लिखने का है और सेपरेट कर देने का है. This is the important step in this question. तो आंसर है मेरा xy plus 1 equal to y minus 6. So see which option is correct, and this is in the option number 2. Now see the question number 12. This question is also very important, and in this question I have given these three ratios: sin x upon a equal to cos x upon b equal to tan x upon c equal to k. तो पहले मैं इसे राइट डाउन कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 very important, most selected. I have given like this: sin x upon a equal to cos x upon b equal to tan x upon c equal to के ये तीनों रेशो जो है के बराबर है. ओके, एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, बी सी प्लस 1 अपॉन सी के प्लस ए के अपॉन 1 प्लस बी के. तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है. तो आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ दिस बी सी के की वैल्यू मैं यहाँ से किस तरह से सब्स्टिट्यूट करता हूँ देखिए. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेस्ट क्वेश्चन. बी की वैल्यू मुझे पहले सब्स्टिट्यूट करने की है. कॉस एक्स अपॉन बी इक्वल टू के है, तो बी होगा कॉस एक्स अपॉन के. अब सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है, तो टेन एक्स अपॉन सी इक्वल टू के है, तो सी क्या होगा टेन एक्स अपॉन के प्लस 1 अपॉन सी के है, तो सी के इज अगेन tan x, सी के इज व्हाट tan x प्लस फिर से मुझे a के सब्स्टिट्यूट करने का है, तो दिस a इंटू के होगा sin x अपॉन 1 प्लस बी के, तो b इंटू के होगा cos x. ओके, तो चलो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं. साइन कॉस में इसे कन्वर्ट करेंगे. ऑप्शंस भी हमें देखने के हैं, ए और के फॉर्म में मुझे आंसर देने का है. ओके, तो ए यानी इसमें सिर्फ साइन एक्स बचना चाहिए. ओके, तो किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो पहले इस tan x को देखिए. दिस tan x इज sin x अपॉन cos x. sin x अपॉन cos x, तो cos कैंसिल होगा, ये cos x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/k tan x sin x अपॉन cos x. cos कैंसिल, ऊपर है sin x अपॉन a k प्लस अब ये जो है 1/tan x, तो 1/tan x क्या है cot x, और cot x क्या है cos x अपॉन sin x. ओके, एक स्टेप मैं कम कर देता हूँ. अब मैं इसे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगा. cos x इंटू 1 इज cos x प्लस cos x इंटू cos x क्या होगा cos square x अपॉन दिस sin ऑफ x इंटू 1 प्लस cos x. राइट, नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस 1/k एज इट इज. sin x अपॉन k को क्या मैं लिख सकता हूँ, sin x अपॉन a इक्वल टू k है, तो sin x अपॉन k इक्वल टू होगा a. here अगेन ऑब्जर्व दिस टर्म, sin x अपॉन a इक्वल टू k है, मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है sin x अपॉन k, तो sin x अपॉन k इक्वल टू क्या होगा a. टेकिंग cos x कॉमन, एंड हियर इज 1 प्लस cos x upon sin x into here is cos x in cos square x प्लस ये टर्म बाकी रह गई है sin x into sin x. ओके, दिस रिमेन्स sin square x. ये sin x into sin x क्या होगा sin square x. एंड नाउ हियर इज, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, sin square x प्लस cos square x, ये हमारा बाकी रह गया था. दिस इज इम्पोर्टेंट. sin square x प्लस cos square x क्या होगा 1 प्लस cos x. राइट, दिस इज 1 प्लस cos x विल गेट कैंसिल विद दिस 1 प्लस cos x, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ sin x 1 अपॉन व्हाट sin x. ओके, सो सी स्टूडेंट्स, cos x प्लस cos square x plus sin square x like this. Okay, so cos square x plus sin square x is 1 plus cos get cancelled with this 1 plus cos. Here is 1 by sin, this is a by k प्लस अब sin x को लिख सकते हैं हम a k, तो 1 अपॉन sin x है, ये 1 अपॉन sin x है. a k इक्वल टू 1 अपॉन
ए के इक्वल टू साइन एक्स, तो ये बनेगा 1/sin x, 1/sin x। तो 1/sin x को क्या लिखेंगे 1/a के। सी यार फिर से ऑब्जर्व कीजिए, 1/sin x को लिखने का है, sin x a के है तो 1/sin x क्या होगा 1/a। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिल सकता है 1/k। 1/k अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा a + 1/a, 1/k इंटू a + 1/a। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो 1/k इंटू a + 1/a, सी द ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट। 1/k इंटू a + 1/a, yes it is correct and this is answer in the option number 2. Now see this question number 13. What I have to find? I have to find the value of tan square 20 minus sin square 20 upon, प्रोडक्ट में है ये दोनों टर्म्स, फिर से tan square of 20 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 20, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। ओके, ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शंस आर 1/2 1, इस तरह के ऑप्शंस है। सो दिस वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन दिस एंगल 20, किसी एंगल पे डिपेंड नहीं है, तो मैं इससे x ही ले लेता हूँ। tan square x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन tan square x into sin square x, as this value does not depend on any angle 20 डिग्री या किसी एंगल पे डिपेंड नहीं है, कांस्टेंट इसका आंसर है। ओके, तो मैं tan square x को कॉमन ही ले लेता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। tan square x को कॉमन लेंगे 1 माइनस, तो ये बनेगा sin square x, sin square में से tan square कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा cot square x, फिर से मल्टीप्लाई करके देखिए वही आता है क्या नहीं, tan square x इंटू 1 tan square x, sin square x इंटू cot square x इंटू tan square x, तो tan cot कैंसिल होके फिर से मुझे मिलेगा sin square x अपॉन दिस tan square x इंटू sin square x, this will get cancel. So now see here 1 minus this cot square x is cos square by sin square, तो sin square कैंसिल होगा, cot square is cos square by sin square कैंसिल, तो यहाँ बचेगा cos square x upon this sin square x, and 1 minus cos square x is again sin square x, so these terms both are equal, therefore get cancelled and answer is 1. So value of this expression is 1, so C1 is in the second option. And here is the question number 14. Which of the following is correct? इसमें से हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं और किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू करेक्ट है ये हमें आइडेंटिफाई करने का है। तो सभी ऑप्शंस ही हम चेक करेंगे। सी फर्स्ट ऑप्शन, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट ऑप्शन में मुझे दिया है साइन ऑफ 765 डिग्री की वैल्यू दी है -1/√2। सो चेक करते हैं वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। साइन ऑफ 765 डिग्री, ओके, so 765 degree is 720 plus 45, 720 plus 45 degree, okay, so 720 plus 45 यानी this angle lies in 2 राउंड के बाद 45 आ रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग 2 राउंड 45 ऐड करने का है। सो दिस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव और हमें इसकी वैल्यू दी है -1/√2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन की पॉजिटिव होती है, सभी रेशियोज पॉजिटिव होता है। तो हियर वैल्यू इज गिवन इज नेगेटिव, देयरफॉर दिस इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए +1/√2। साइन ऑफ 720 + 45 साइन ऑफ 45 एंड साइन ऑफ 45 इज 1/√2। सो दिस इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन 2 चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में मुझे दिया है cot ऑफ -15π/4, cot ऑफ -15π/4, cot ऑफ -15π/4 की वैल्यू मुझे -1 दी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। cot of -θ is -cot θ minus cot of 15π/4, so this is -cot of, इसे मैं लिखता हूँ 4π
माइनस पाई बाय 4, 4 पाई माइनस पाई बाय 4 इज 15 पाई बाय 4. देखिए 16 पाई माइनस पाई 15 पाई बाय 4. सो दिस माइनस एज इट इज 4 पाई माइनस पाई बाय 4, दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू कॉट पाई बाय 4 एंड वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाय 4 इज +1. लेकिन यहाँ पे मुझे आंसर दिया है -1, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. नाउ चेक थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन नंबर 3. थर्ड ऑप्शन में मुझे दिया है tan ऑफ 13 पाई बाय 3. tan ऑफ 13 पाई बाय 3 इक्वल टू 1/√3 दिया है. तो चलिए इसे पे सॉल्व कर देते हैं. इसे मैं लिखूंगा 12 पाई प्लस पाई, तो ये बन जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाय 3. 4 पाई प्लस पाई बाय 3, 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाय 3. 4 पाई प्लस पाई बाय 3 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बनेगा tan ऑफ पाई बाय 3 और tan ऑफ पाई बाय 3 यानी tan ऑफ 60. tan 60 इज √3 और यहाँ पे आंसर कितना है 1/√3. देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. इट मीन्स आवर फोर्थ ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट. एंड इन फोर्थ को इसको भी चेक कर लेते हैं. व्हाट आई हैव टू फाइंड इन द फोर्थ ऑप्शन. सी इसे मैं फोर्थ को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर 4 एंड इन दिस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक ऑफ माइनस. फोर्थ ऑप्शन देखें, कोसेक ऑफ माइनस 1410 डिग्री और इसकी वैल्यू मुझे दी थी +2. ओके, तो देखिए चेक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कोसेक ऑफ माइनस थीटा. कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा. सो माइनस कोसेक ऑफ 1410 को हम लिखेंगे 1410 को लिखेंगे 1440 माइनस 30, राइट. सो 1440 इज मल्टीपल ऑफ 360. मल्टीपल ऑफ 360 है. सो दिस इज माइनस कोसेक ऑफ 4 टाइम्स. देखिए 360 इंटू 2 720 और ये 720 का भी डबल है. सो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ 360 माइनस 30. ओके, सो दिस इज माइनस एज इट इज 4 यानी 8 पाई है. दिस इज व्हाट 8 पाई माइनस थीटा. 8 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक इज निगेटिव, सो दिस इज निगेटिव एंड दिस इज निगेटिव. माइनस माइनस प्लस, नो चेंज होगा. कोसेक 30 होगा. कोसेक ऑफ 30 ही मिलेगा एंड वैल्यू ऑफ कोसेक 30 इज 2. सो दिस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस वैल्यू इज करेक्ट. पहले 3 ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, उनकी वैल्यूज रॉन्ग है. सो हियर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. In this question number 15, I have given these two values of sin of alpha plus beta and sin of alpha minus beta. So sin of alpha plus beta कितना दिया है 1. Sin of alpha minus beta is 1/2 and here important it is given that alpha beta belongs to 0 to pi by 2. Both alpha beta are acute angles. तो ये काफ़ी important point है. So यहाँ पे इसको and we have to find the value of this tan ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू tan ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस बीटा. इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है. सी वेरी नाइस क्वेश्चन. अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 है और अल्फ़ा बीटा अगर एक्यूट एंगल से लेस देन π/2 0 to π/2, तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट ऑप्शन दिखाई देता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा π/2 और साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा 1/2 है. साइन 30 1/2 होता है तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा π/6. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. सो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 90 प्लस 30 120. 2 अल्फ़ा इक्वल टू 120 तो अल्फ़ा कितना होगा 60. सो हियर अल्फ़ा इज π/3. ओके, एंड बीटा कितना होगा? बीटा इज तो π/3 है तो 90 माइनस 60 30, so it becomes π/6. okay, so this is the beta and this is the alpha. Okay, now I have to find the value of tan of alpha plus 2 beta into tan of 2 alpha plus beta. So tan of alpha plus 2 beta into tan of 2 alpha plus beta, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है. तो मैं इसे लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा
इंटू tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा। ओके, यहाँ पे 2 बीटा है तो इसे लिखा है मैंने बीटा प्लस बीटा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो मैंने लिखा है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज 2 अल्फ़ा। सो दिस इज व्हाट tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है π/2 प्लस बीटा कितना है π/6 इंटू tan ऑफ फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस अल्फ़ा प्लस बीटा इज π/2, दिस अल्फ़ा प्लस बीटा इज π/2 प्लस दिस अल्फ़ा, सो अल्फ़ा इज व्हाट π/3। तो अब आंसर क्लियर है, tan ऑफ π/2 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट π/6, tan ऑफ π/2 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, सो इट इज माइनस कॉट ऑफ π/3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, माइनस 30 डिग्री tan 30 1/√3, तो ये होगा √3 इंटू माइनस 60 tan 60 √3, तो ये होगा 1/√3। ओके, तो इस तरह से मुझे आंसर कितना मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल, √3 कैंसिल, 1 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस वाज 15, 1 इज करेक्ट। कौन से ऑप्शन में देखिए 1, एंड यस इट इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। Now see this question number 16 and here is given this expression. We have to find the value of this expression. काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है, अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले हमें इसमें यूज़ करने के हैं करेक्टली। एक भी अगर रॉन्ग हो जाता है तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें लिखने का है। तो चलिए सिर्फ फार्मूले ही यूज़ करने के हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा माइनस tan ऑफ π/2 माइनस एक्स, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है तो ये बनेगा कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स। ओके, x माइनस π/2 है, इसे मैंने π/2 माइनस एक्स लिखा है, माइनस बाहर आएगा, tan ऑफ माइनस एक्स माइनस होता है, सो माइनस tan ऑफ π/2 माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स बनेगा, 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स का क्वाड्रेंट होगा फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 3π/2 इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सो दिस बिकम्स व्हाट sin x माइनस, अब 7π/2 माइनस एक्स, 7π/2 माइनस एक्स होगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, निगेटिव का क्यूब भी निगेटिव होता है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, और 7π/2 की वजह से साइन का कॉस बनेगा, सो इट बिकम कॉस क्यूब एक्स। राइट, अलाइड एंगल के फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से यूज़ करने के हैं। दिस इज माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स इज व्हाट साइन एक्स इंटू 3π/2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, tan का बनेगा कॉट एक्स। तो बस इसे ही आपको सिंप्लीफाई करने का है। तो ये है कॉट, कॉस बाय साइन, साइन कैंसल, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन माइनस ये भी कॉस बाय साइन, साइन कैंसल, कॉस एक्स बचेगा। सो यहाँ से मैं माइनस कॉस एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉस एक्स कॉमन ले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन दिस माइनस कॉस एक्स, तो फिर से दिस कैंसल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज द simplified form of this expression sin square x. So see the options, which option is correct, sin square x is the correct answer। कौन से ऑप्शन में है sin square x? Yes, it is in the option number 2. Now see this question number 17. Here I have given that the equation sin square theta equal to x square plus y square upon 2xy is possible if साइन स्क्वायर थीटा की ए वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy किस कंडीशन में पॉसिबल होगी। तो ऑप्शन में दिया है एक्स वाई के लिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगा ये हम चेक करेंगे। सो आई हैव गिवन दिस इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ओके, तो हम सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन थीटा इज -1 to 1 में होता है। सो दिस वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1।
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, स्क्वायर है। सो दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन दिस 2xy upon this 2xy is less than or equal to 1. So like this x square plus y square will be less than or equal to, ये बनेगा 2xy and this will be x square minus 2xy plus y square will be less than or equal to 0, right? और फिर से मुझे यहाँ पे मिलेगा x माइनस y का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, ओके। लेकिन x माइनस वाई का स्क्वायर है तो स्क्वायर कैन नॉट बी लेस देन 0, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इट मीन्स x माइनस वाई का जो स्क्वायर है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 तो नहीं हो सकता। स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, सो दिस इज x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ही होगा एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन इफ x इक्वल टू वाई। जब x इक्वल टू वाई होगा तभी ये पॉसिबल होगा। सो x इक्वल टू वाई इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड यस दिस x इक्वल टू वाई इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। एंड हियर इज दिस क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें मुझे क्या दिया है, वन एंगल अल्फा इज गिवन which is less than 3 pi by 2 greater than pi. Alpha is less than 3 pi by 2 greater than pi है and I have to find the value of this expression. So alpha is less than 3 pi by 2 greater than pi. It means alpha angle कौन से quadrant में है? Alpha lies in which quadrant? Less than 3 pi by 2 greater than pi. Yes, alpha lies in which quadrant? Third quadrant में alpha है। ग्रेटर दैन 180 लेस दैन 270। तो चलिए ये इसका यूज़ करके हमें इसका आंसर देने का है। सो दिस वैल्यू आई हैव टू फाइंड रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इज 1 माइनस कॉस अल्फा, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा इज 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू दिस, सो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, a plus b into a minus b, this get cancel, 1 plus 1 2 upon, तो ये बनेगा रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इज मॉड ऑफ साइन अल्फा, ओके। अब साइन अल्फा पॉजिटिव है या निगेटिव है ये हमें चेक करने का है। सो अल्फा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है, सो दिस 2 अपॉन साइन एक्स इज लेस देन 0, सो मॉड ऑफ साइन अल्फा विल बी माइनस साइन अल्फा, मॉड ऑफ साइन अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा बिकॉज साइन अल्फा इज लेस देन 0, सो माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा, तो इसका आंसर होगा माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा। सी द ऑप्शन माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा, येस इट इज इन द ऑप्शन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19। सी द क्वेश्चन नंबर 19, हमें क्या दिया है, वन फंक्शन इज गिवन एंड आई हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज मीन्स आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, what is f of x? Here f of x is given as sin x to the power 6 plus cos x to the power 6. So ये important results है, मैंने काफ़ी lectures में यूज़ किए हैं। This sin x to the power 6 plus cos x to the power 6 is directly equal to 1 minus 3 sin square x into cos square x. ऐसे मेरे पास 4 रिजल्ट है। sin x to the power 6 plus cos x to the power 6 is 1 minus 3 sin square x cos square x. Second result is sin x to the power 4 plus cos x to the power 4 is 1 minus 2 sin square x into cos square x. फिर से सुनिए, sin x to the power 4 plus cos x to the power 4 is 1 minus 2 sin square x into cos square x. And one more result was there, sin x to the power 4 plus cos square x या cos x to the power 4 plus sin square x। एक का पावर 4 है और एक का पावर 2 है साइन में से और कॉस में से, तो उसका रिजल्ट होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये रिजल्ट मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको दिखाए थे और कहा था कि दिस रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहा हूँ, साइन एक्स टू द पावर 6 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 6 इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम रेंज फाइंड आउट करने की है, तो इसको प्रोसीजर देखिए। आई विल डिवाइड हियर बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4।
4 से मैं डिवाइड करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। किस लिए करता हूँ? क्योंकि मुझे एक ही टर्म में साइन कॉस को एक ही टर्म में यहाँ से कन्वर्ट कर सकता हूँ। डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो दिस इज 1 माइनस 3/4। 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x। तो ये साइन 2x का स्क्वायर होगा। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर ऑफ 2x। अब दिस इज द एफ ऑफ एक्स, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है और इसी की मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की है। सो सी स्टूडेंट्स, अब मैं इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करता हूँ? 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ का एक साइन 2x से बेसिक पॉइंट से मैं ले लेता हूँ। साइन ऑफ 2x इज लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। साइन ऑफ एनी एंगल साइन इज -1 to 1 में होता है। अब साइन स्क्वायर 2x को तैयार करता हूँ मैं। साइन स्क्वायर 2x इज लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज 0 और ग्रेटर देन 0। तो ये इस तरह से होगा। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -3/4 से। -3/4 साइन स्क्वायर 2x। तो ठीक है, पहले 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3/4 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ की टर्म तैयार कर रहा हूँ माइनस की। सो दिस -3/4 साइन स्क्वायर 2x विल बी लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो, माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये चेंज होगा। दिस विल बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -3/4। यहाँ पे माइनस होगा -3/4, लेकिन ये लेफ्ट साइड में जाएगा और ये 0 राइट साइड में जाएगा। ओके, अब यहाँ से 1 ऐड करने का है। So 1 minus 3/4 into sin square x, 0 plus 1 is 1 and this is 1 minus 3/4। ये है 0 plus 1, मैंने 1 ऐड कर दिया है। So this is less than or equal to, so this is less than or equal to 1 minus 3/4 sin square of 2x। 0 plus 1 is 1 and 1 minus 3/4 कितना होगा? 1/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1/4। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। सो रेंज ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स इज 1/4 to 1। तो अगर आपके समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार इसे देखिए। यहाँ तक ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 किया है। दिस इज साइन स्क्वायर 2x। साइन 2x इज बिटवीन -1 to 1, स्क्वायर किया तो 0 to 1। 3/4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3/4 और 0 इंटरचेंज हो जाएंगे। 1 ऐड किया, सो रेंज इज 1/4 to 1। सो सी ऑप्शंस 1/4 to 1, yes, this 1/4 to 1 is in the first option। And now see the last question of this lecture number 2, question number 20। last question है and this question is also very very important। question number 20 इक्वेशन दिया है हमें साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना दिया है? 1/2। थीटा इज इन बिटवीन 0 to पाई। थीटा इज लेस देन पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा दिया है, राइट। इट मीन्स थीटा में लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट 0 to पाई। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है या सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। एंड अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? टैन थीटा। मुझे टैन थीटा फाइंड आउट करने का है। तो किस तरह से मैं टैन फाइंड आउट कर सकता हूँ? ओके, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा 1/25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होगा 1। मिडल टर्म इसकी होगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा? साइन ऑफ 2 थीटा इज 1/25 and this sin of 2 theta is 1/25 minus 1, so it will be -24/25। लेकिन मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने की tan थीटा की। सो साइन ऑफ 2 थीटा के दो फार्मूले हैं। वन इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा एंड सेकंड वन इज इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। सो साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा लिखा है मैंने इन टर्म्स ऑफ tan, फार्मूला है -24/25। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही मुझे
tan मिलेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। ये इक्वेशन बनेगा 2 tan थीटा, ये बनेगा 50t लिख देंगे। tan थीटा इक्वल टू टी, tan थीटा इक्वल टू टी लेते हैं, इक्वल टू -24 प्लस 24t²। 50 tan थीटा इक्वल टू -24 माइनस ही होगा। ओके, अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है 24t² प्लस 50t, 24t² प्लस 50t प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 12t² प्लस 25t प्लस 12 इक्वल टू 0, वेयर t इज़ व्हाट, tan थीटा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। इसको 16t प्लस 9t लिख के इसको फैक्टराइज कीजिए, आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, 4 tan थीटा प्लस 3 इंटू 3 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से आपको फैक्टर्स मिलेंगे और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी tan थीटा की -4/3 एंड वन वैल्यू ऑफ tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, -3/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके देखिए, दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ tan थीटा। लेकिन हमें ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन में दिया है थीटा इज लाइज नाइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन tan तो निगेटिव है, tan की वैल्यू निगेटिव मिली है, तो tan निगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। सो इट मीन्स थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि हमें tan की वैल्यू निगेटिव मिली। अब देखिए ऑप्शन में -4/3 भी दिखाई दे रहा है, -3/4 भी दिखाई दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें चेक करने का है, tan से फिर से हमें साइन कॉस निकालने का है और वो साइन कॉस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू -3/4 लेके देखते हैं। सी हियर, tan थीटा अगर मैं -3/4 लेता हूँ, एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ करूँगा 3/4, ये tan थीटा 3/4 है। तो यहाँ से मुझे साइन थीटा क्या मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन तो पॉजिटिव लेने का है। इफ दिस इज द एंगल थीटा, tan थीटा इज 3/4, साइन थीटा कितना होगा 3/5 और cos थीटा कितना होगा 4/5, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, सो इट विल बी -4/5। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा 3/5 माइनस 4/5, सो इट विल बी -1/5। लेकिन हमारा इक्वेशन क्या है ओरिजिनल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना है 1/5, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना मिला है -1/5। इफ़ वी टेक tan थीटा इक्वल टू -3/4, सो -3/4 से हमारा ऑप्शन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज tan थीटा इक्वल टू -4/3, tan थीटा इक्वल टू -4/3। आप tan थीटा इक्वल टू -4/3 लेके साइन कॉस की वैल्यू पहले निकाल लीजिए और उस साइन कॉस को साइन प्लस कॉस करके देखिए, यू विल गेट +1/5। सो दिस -4/3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। tan थीटा की वैल्यू -4/3 एंड यस इट इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम सेंगेज मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही सारे लेक्चर्स में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ फॉर जेईई मेन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के लिए, तो देखते रहिए। इस सभी लेक्चर्स की सीरीज़ 15 लेक्चर्स है, 150 टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।